Very good morning, dear students. Welcome to e-learning classes of accountancy. Today in this lecture, I am going to complete topic that is interest on capital of chapter 2, accounting for partnership firm fundamentals. And in this lecture, I am going to cover topic interest on capital with some numericals also. See, interest on capital. What is interest on capital? Interest on partners' capital will be allowed only when it has been specifically mentioned in the partnership deed. Sometimes partner invest capital in the business and they are allowed as per partnership deed interest on capital on such amount which they are invested in the business, but it will be allowed only when it is clearly mentioned in the partnership deed. If interest on capital is to be allowed as per the agreement, it should be calculated with respect of time. If interest on capital में as per agreement कर रहे हैं तो इसको हम calculate कर लेते हैं as per the time, rate of interest and the amount of capital, means interest on capital is equals to amount of capital into rate of interest upon 100. ठीक है. Then interest on capital can, और इसके अगर इसके अलावा हमारे interest on capital calculate करते हैं तो इसके दो methods हैं. एक है appropriation of profit, interest on capital treated as appropriation of profit. Number 2, interest on capital treated as charge against profit. Interest on capital and appropriation of profit. Appropriation मैंने आपको पहले भी बताया था. Appropriation is a deed in which partners get interest on capital, salary, commission only when firm is getting net profit, and till the limit of net profit they will get all these things. The interest on capital and appropriation of profit में first case है in case of losses. Interest on capital is not allowed. अगर loss हो रहा है firm को तो no interest on capital will be allowed. In case of sufficient profit, पूरा profit sufficient profit है तो interest on capital is allowed in full. तो interest on capital पूरा दे दिया जाता है because profit is sufficient. Number 3, in case of insufficient profit, अगर profit sufficient नहीं है, insufficient है तो in this case interest will be restricted to the amount of profit, hence profit will be distributed in the ratio of interest on capital of each partner. और अगर profit sufficient नहीं है तो interest on capital till the amount of profit restricted हो जाता है और profit के accordingly उसको distribute करते हैं as per the profit. It will be distributed in the ratio of interest on, और interest on capital के ratio में profit को distribute कर देते हैं. Profit is insufficient. ठीक है. अब नंबर बी इज़ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट. अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो इट विल बी अलाउड इररिस्पेक्टिव कि आपका जो है फुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड इररिस्पेक्टिव पार्टनर इज गेटिंग लॉस. अगर फर्म को लॉस भी हो रहा होगा तब भी पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज दिया जाएगा व्हेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ट्रीटेड एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट. ठीक है. सेकंड थिंग, एक बात बिल्कुल ध्यान रखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज कैलकुलेटेड एज ऑन ओपनिंग कैपिटल. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे कैलकुलेट किया जाता है. ओपनिंग कैपिटल इज द कैपिटल which is given on 1st April to the year, and closing capital is that capital which is given on the 31st March of that year. ठीक है. तो अगर वो ओपनिंग कैपिटल क्वेश्चन में गिवन नहीं होती है तो फर्स्टली यू टू कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल. द फॉर्मेट इज हियर टू कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल, दैट इज कैपिटल एट द एंड, दैट इज क्लोजिंग कैपिटल. ऐड उसमें ड्राइंग ऐड कर दीजिए, इंटरेस्ट में ड्राइंग ऐड कर दीजिए. अगर लॉस हो रहा है फर्म को तो लॉसेज ड्यूरिंग द ईयर विल बी एडेड, और उसमें से जो लेस होगा दैट इज एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस, दैट विल बी डिडक्टेड. अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर विल बी डिडक्टेड. एनी सैलरी कमीशन इफ पार्टनर इज गेटिंग इट विल बी डिडक्टेड. तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज ओपनिंग कैपिटल, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पर ही चार्ज होता है. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 34 ऑफ योर बुक. यह आपके बुक का 34 क्वेश्चन है. ए एंड बी कॉन्ट्रीब्यूट ₹4 लाख एंड ₹3 लाख रिस्पेक्टिवली एज देयर कैपिटल्स. दे डिसाइड टू अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 8% पर एनम. ए एंड बी दो पार्टनर्स हैं, ये कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं कैपिटल 4 लाख एंड 3 लाख. इनको जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है इट इज़ एट द रेट 8% पर एनम. देयर रिस्पेक्टिव शेयर ऑफ प्रॉफिट इज 3:2 एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर इज ₹42,000 बिफोर अलाउिंग फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 42,000. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से पहले इट इज़ बिफोर एडजस्टमेंट 42,000 इज द नेट प्रॉफिट. शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट. आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट शो करना है वेयर देयर इज नो एग्रीमेंट एक्सेप्ट फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. जब कोई भी एग्रीमेंट नहीं है एक्सेप्ट फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. एंड नंबर 2, वेयर देयर इज क्लियर एग्रीमेंट दैट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड इवन इफ इट इन्वॉल्व्स द फर्म इन लॉसेस. ये पहला एग्रीमेंट क्या है, एप्रोप्रिएशन वाला केस है. फर्स्ट केस इज एप्रोप्रिएशन का केस है जब कोई भी एग्रीमेंट नहीं है एक्सेप्ट फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. और नंबर 2 इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी गिवन इवन व्हेन फर्म इज गेटिंग लॉस. सी फर्स्ट केस में, केस 1 में नेट प्रॉफिट 42,000 हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लिया और दोनों पार्टनर्स को फुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. जो फर्स्ट केस के एप्रोप्रिएशन वाला केस है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड टिल द लिमिट ऑफ प्रॉफिट ओनली. किसके लिमिट तक मिला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट के लिमिट तक ही मिला है. तो 42,000 को टिल द लिमिट ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अमंग द पार्टनर्स एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दैट इज 24,000 एंड 18,000. सीन वर्किंग नोट्स कैसे कैलकुलेट करा आपने इसमें,
जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आना चाहिए था दैट इज़ 4 लाख इंटू 8%, 4 लाख का 8% 32,000 और 20 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड भी 3 लाख का 8% 24,000। लेकिन हमारा जो नेट प्रॉफिट है 42,000 है और इन दोनों का जो टोटल आ रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का दैट इज़ 56,000। इन फर्स्ट केस नेट प्रॉफिट टिल द लिमिट ऑफ प्रॉफिट आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, इट इज़ एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो आपने 32,000 रेशियो 24,000 करके उसका रेशियो फाइंड आउट कर लिया, दैट इज़ 4:3। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इन देयर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेशियो। इट मीन्स इन फर्स्ट केस 42,000 डिवाइड हो जाएगा पार्टनर्स में 4/7 एंड 3/7 करके, जो ये डिवाइड हुआ है 4/7, 42,000 इंटू 4/7, ठीक है। तो 7 6 42 एंड 6 4 24,000 एंड 42,000 इंटू 3/7 दैट इज 18,000। तो 42,000 क्योंकि एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया है। व्हेन इट इज़ नॉट मेंशन इन द क्वेश्चन तो इट इज़ एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी गिवन टिल द लिमिट ऑफ प्रॉफिट ओनली। और वो प्रॉफिट आपके उनका जो डिवाइड होता है वो उनके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में ही डिवाइड हो जाता है, जैसे मैंने यहाँ रेशियो आपको कैलकुलेट करके बताया। अब केस 2 था, केस 2 में जो है आपका जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है उसमें बोला इट इज़ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, इट मीन्स फुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी गिवन टू द पार्टनर चाहे फर्म को लॉस हो रहा हो। तो हमने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में बाय नेट प्रॉफिट 42,000 टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 32,000 एंड 24,000 इट इज़ 56,000। तो इट मीन्स आपका लॉस आ गया। लॉस कितना आ गया आपके फर्म का 56,000 माइनस 42,000 इट इज़ 14,000। 14,000 का जो लॉस आ गया वो डिवाइड हो जाएगा पार्टनर्स में इन दियर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दैट इज़ 3:2। इज इट क्लियर? 3:2 में उसको डिवाइड कर दीजिए ए एंड बी में। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 36। ऑन 1st April 2013, Bridge and Nandan entered into partnership to construct toilet in government girls' school in the remote areas of Uttarakhand. They contribute capital of rupees 10 lakh and 15 lakh respectively. Their profit sharing ratio was 2:3 and interest on allowed on capital as provided in the partnership deed was 12% per annum. During the year ended on 31st March 2014, the firm earned a profit of 2 lakh. Prepare profit and loss appropriation account of Bridge and Nandan for the year ended on 31st March 2014. सी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है आपको ब्रिज एंड नंदन का। इनकी कैपिटल थी 10 लाख एंड 15 लाख। सबसे पहले आप इनका वर्किंग नोट्स देखिए। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10 लाख का 12% 1,20,000। बी इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 15 लाख का 12% दैट इज़ 1,80,000। प्रॉफिट इज़ रुपीज़ 2 लाख जबकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हो गया 3 लाख हो गया। सो आपका जो एक्सपेंस द एक्सपेंसेस डिवाइडेड इनटू देयर एक्सपेंसेस, इट मीन्स यहाँ पे भी आपको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं देना है तो टिल 2 लाख आपको डिवाइड करना है। तो इसका आपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल दिया। ए की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,20,000 एंड बी की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दैट इज़ 1,80,000। तो इसके बेसिस पे आपने जो है वो कैलकुलेट कर लिया दैट इज़ 1,20,000 एंड 1,80,000। तो 1,20,000 1,80,000 के बेसिस पे 2:3 इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो आ गया। इसी में आप उसको प्रॉफिट को डिवाइड कर देंगे 2 लाख इंटू 2/5 एंड 2 लाख इंटू 3/5 दैट इज़ 80,000 एंड 1,20,000। अगर आपका चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बोला होता तब आप इसको जो है सब पूरा फुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी प्रोवाइडेड एंड सी इन द सोल्यूशन बाय नेट प्रॉफिट 2 लाख एंड बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ब्रिज 80,000 एंड नंदन 1,20,000। ये आपके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में डिवाइड हो गया। इन द वर्किंग नोट्स यू हैव टू शो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो क्या है। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। 2 क्वेश्चंस आर इन योर असाइनमेंट। डू दीज क्वेश्चंस इन योर कॉपीज। नो नीड टू नोट डाउन क्वेश्चन, सिर्फ क्वेश्चन नंबर नोट डाउन करिए। डू ऑल द वर्क इन योर कॉपी। हर लेक्चर के बाद उसका असाइनमेंट कंप्लीट करिए और तभी आपका वर्क कंप्लीट करते चलिए बेटा, बिकॉज कॉपी इज़ कंपल्सरी टू मेंटेन। थैंक यू बेटा। आई हैव अ नाइस डे। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टैंड।